ओके, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करूं? Yes, sir. All right. So this is lecture number 27, and today we are going to start Unit 4, Media Access Control Sublayer Protocols. Let's analyze the syllabus first. We have started Unit 3rd Data Link Layer. In the last some topics, we have discussed some error detection mechanisms in which we have already discussed parity, VRC, LRC, CRC, checksum, and Hamming code. So among that, 5 methods are error detection, and there is one method which is error detection and correction method, Hamming code. We have already discussed with some numericals and logic diagrams. Now in the data link layer, the second part was error flow control. Error control and flow control. Basically two characteristics of data link layer, and in the data link layer unit we have need to implement so many protocols based on error detection and error correction as well as flow control. So in flow control method we have discussed simplex protocol, simplex stop and wait protocols for error free channels. We have seen how data flow from sender to receiver if there is an error free channel, and if there is a error error for channel, then simplex stop and wait protocol, sliding window protocols, go back and ARQ, and selective repeat protocols. So last two protocols both are based on sliding window protocol. So we have already discussed in that protocol what is the size of window, why we need to design the windows, how multiple frames transmit from sender to receiver, how a single acknowledgement can deal with a number of frames. So this is about the data link layer. Now the second part of data link layer is MAC, Media Access Control Sublayer. So basically, if we analyze the data link layer, basically there are two parts of data link layer. Data link layer further divided into two sublayers. First one is logical link layer protocol, which is known as LLC, logical link control layer protocol in this way. And the second part was media, or you can say medium access control sub layer protocols. So this is basically the data link layer having two different parts. So in LLC part we have discussed error control mechanisms, in which we have discussed VRC, LRC method, CRC method, checksum method, and Hamming code. And second one was flow control. Flow control mechanisms, and in the flow control method we have discussed
noiseless channel, in which we have discussed simplest protocol and stop and wait without ARQ, or simply simplest stop and wait protocol. Second, that is noisy channel, in which we have discussed stop and wait ARQ protocol and sliding windows protocol. And in sliding window protocol, we have again two different. First one was go back and ARQ. Second one, selective repeat ARQ. So it is just for your information what we have discussed so far, and the method that are belonging to the LLC layer. Now we are taking another unit, which is unit 4, which is totally based on medium access control sublayer protocols. So again, media access control sublayer further divided into three different portions. This is the category of media access control sublayer protocols that is broadly divided into three different categories: random access protocol, controlled access protocol, and channelization protocol. So random access protocol having again a number of protocols which we have to discuss in this unit: Aloha, CSMA, CSMA oblique CD, CSMA oblique CA. In controlled access protocol, again we have three different methods: reservation, polling, and token passing. And channelization protocol, we have three different methods or techniques: FDMA, TDMA, and CDMA. So this protocol we have to discuss in this unit, which is our unit 4, media access control sublayer, or you can say MAC protocol, MAC, media access control protocol. This is the diagram. Data link layer is further divided into two ways: LLC and MSC. MSC, that is media access control protocol, again divided into Ethernet MAC, token ring, token bus, and different kind of topologies also there. So there are some protocols which are based on Ethernet, that is total local area network. How we access the media if multiple devices are connected with a common medium, common cable, then how data transfer initiate by the machine. Similarly, if there is a topology called token ring, there is a topology called ring topology. So how token can be generated, how token contain the information and move with different machines that are fascinated into the ring manner.
And similarly token bus, that is the bus is the topology, and token is empty packet that contain the information which is transferred from sender machine to receiver machine. So we'll discuss later one by one. Right here you have to just understand data link layer is further divided in two parts, LLC and MAC. LLC we have already covered, and MAC we are just going to start. Channel allocation problem, multiple access protocol like Aloha, carrier sense multiple access, that is CSMA protocol, collision free protocol, wireless LAN protocol, IEEE 802.11 architecture and their protocol stack, physical layer, sub layer, frame structure, services and data link layer switching. These are the topics of unit 4. So let's begin the session. Media access control sub layer. इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिया एक्सेस सब लेयर. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीडिया एक्सेस सब लेयर होती क्या है. दिस लेयर इज बेसिकली डेडिकेटेड टू द ब्रॉडकास्ट नेटवर्क. किसी भी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को डेडिकेटेड लेयर दी जाती है, उसको बोला जाता है मीडिया एक्सेस सब लेयर. अब ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या है, तो जैसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, उस लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को हर एक मशीन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उस नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती है. और ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो उस नेटवर्क का जो भी सबनेट मास्क होगा, उस सबनेट मास्क के एड्रेस पर जो आईपी एड्रेस मेंशन होता है उससे हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं. सो मीडिया एक्सेस सब लेयर बेसिकली डेडिकेटेड होती है किसी भी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को, या आप ये कह सकते हैं कि एक लोकल एरिया नेटवर्क को भी एसोसिएटेड होती है, उसको डेडिकेटेड होती है और उसी के लिए होती है, क्योंकि हमें लोकल एरिया नेटवर्क में ही इंफॉर्मेशन की ट्रांसफरिंग करनी होती है, पैकेट्स को मूव करवाना होता है. इसलिए एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क एक लोकल एरिया नेटवर्क को ही डेडिकेटेड होती है मीडिया एक्सेस सब लेयर. ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आर ऑल्सो रेफर्ड एज अ मल्टी एक्सेस चैनल और रैंडम एक्सेस चैनल. इसको रैंडम एक्सेस चैनल भी बोल सकते हैं या मल्टी एक्सेस चैनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई सारे डिवाइसेस एक लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं और कभी भी कोई भी डिवाइस अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने का इनिशिएशन ले सकती है. दैट मीन्स कोई भी मशीन डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है. आप यदि सभी लैब में बैठे हो तो आपको यदि इंटरनेट यूज़ करना है तो आप अपने अपने इंटरनेट लॉगिन आईडी से आप कुछ भी डेटा सर्फिंग कर सकते हैं. तो इस तरह से रैंडम एक्सेस चैनल है, चैनल को आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं. प्रोटोकॉल यूज टू डिटरमाइन हु गोज नेक्स्ट ऑन अ मल्टी एक्सेस चैनल बिलोंग्स टू सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर कॉल्ड मैक. अब यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है कि अगर काफ़ी सारे यूज़र एक साथ लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है तो कौन उसको पहले एक्सेस करेगा. तो जो भी सब लेयर डेटा लिंक लेयर की जो सब लेयर है जो कि मैक लेयर कहलाती है, उससे अगर वो कनेक्टेड है, इथरनेट अगर मशीन में अवेलेबल है, उसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है, तो वो डिवाइस इनिशिएट कर सकती है डेटा ट्रांसफरिंग का. मैक इज यूज टू प्रोवाइड बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर ऑफ इथरनेट लैन सिस्टम. मैक का काम क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या है. ये प्रोटोकॉल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम किसी भी ईथरनेट को समझ पाएँ, किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क को जिसको हम ईथरनेट कहते हैं, उस ईथरनेट की क्या फंक्शनिंग है, उस ईथरनेट पर डेटा लिंक लेयर की क्या फंक्शनिंग है, किस तरह से डेटा फ्रेम एक मशीन से दूसरा मशीन पर जाती है एक ईथरनेट के अंदर, उसको हमें समझना होता है. तो वो हमें मैक प्रोटोकॉल बताता है. मैक सब लेयर इज मेनली कंसर्न विथ मीडिया एक्सेस स्ट्रेटजीज. बेसिकली जो मैक सब लेयर है उसका एक ही कंसर्न होता है कि आप मीडिया को कैसे एक्सेस करते हो. यहाँ पे मीडिया एक मीडियम है, केबल है, चाहे वो कोक्सियल हो, ट्विस्टेड केबल हो या फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो या वायरलेस मीडियम हो.
किसी भी तरह का मीडियम अगर है और उससे कोई टोपोलॉजी बनी हुई है, कोई इथरनेट बना हुआ है, और उनके बीच में यदि हमें डेटा कम्युनिकेशन करना है, तो उसके बारे में स्ट्रेटेजी मैक सब लेयर ही बताती है, क्योंकि वहाँ पे हमें उस मीडिया को एक्सेस करके ही डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है। दैट मीन्स अगर आप लैब में किसी मशीन पर बैठे हैं, उसमें से यदि मैं इथरनेट कार्ड निकाल दूँ या इथरनेट केबल निकाल दूँ, तो आप मीडिया को एक्सेस कर ही नहीं सकते और उसके अंदर इंटरनेट नहीं चला सकते। और जब उसके अंदर इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेक सब लेयर मेनली कंसर्न करती है मीडिया एक्सेस स्ट्रेटजी को, एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेंस। अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ये स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है। इट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया एट डिफरेंट डेटा रेट। मैक सब लेयर जिस इथरनेट पर वर्क करती है, सपोर्ट करती है, उस इथरनेट का टाइप अलग अलग हो सकता है। कोई फास्ट इथरनेट हो सकता है, कोई स्लो इथरनेट हो सकता है, कोई गीगाबिट इथरनेट हो सकता है। उसके लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की जो रेट होगी उसी को हम कहते हैं इथरनेट की स्पीड। तो मेक सपोर्ट कर सकता है अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया को। जैसे कोएक्सियल केबल से इथरनेट बनाया जा सकता है, ट्विस्टेड केबल से इथरनेट बनाया जा सकता है, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल से भी बनाया जा सकता है, या फिर आप एक्सेस पॉइंट लगाकर, राउटर लगाकर एक वायरलेस इथरनेट भी बना सकते हैं। तो अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करके जिसकी स्पीड भी अलग अलग होती है, वैसे आप एक इथरनेट तैयार कर सकते हैं। और मेक सब लेयर उस पर डिपेंड करेगी कि आपने किस तरह का ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ किया है और उसकी डेटा रेट क्या है। द मेक सब लेयर एक्सेप्ट डेटा from logical link control layer, calculate a CRC, and then management procedure sends the serial bit stream to physical layer। मीडिया एक्सेस सब लेयर प्रोटोकॉल या ये जो मेथड्स है, इनमें डेटा कहाँ से आता है, कैसे रिक्वेस्ट किया जाता है। तो हमने जैसे जस्ट बताया कि जो डेटा लिंक लेयर की जो टॉप लेयर है वो एलएलसी लेयर है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। तो मीडिया एक्सेस सब लेयर हमेशा डेटा एक्सेप्ट करती है एलएलसी से, कैलकुलेट करती है सीआरसी, क्योंकि एलएलसी का काम होता है एरर को डिटेक्शन करना। एरर डिटेक्शन में आप सीआरसी यूज़ कर सकते हैं, चेकसम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि वहाँ पे कैलकुलेट होता है सीआरसी और फिर कुछ मैनेजमेंट प्रोसीजर सेंड्स किए जाते हैं ताकि फिजिकल लेयर को हम सीरियल बिट में, जिसको हम स्ट्रीमिंग कहते हैं, यदि आप 0101 का कॉम्बिनेशन का एक ऑर्डर तैयार करके फिजिकल लेयर को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम सीरियल बिट स्ट्रीम कहते हैं। तो मेक सब लेयर हमेशा डेटा एक्सेप्ट करती है लॉजिकल लिंक लेयर से, सीआरसी जनरेट करती है और फिर फिजिकल लेयर को ट्रांसफ़र कर देती है सीरियल बिट स्ट्रीम के पैटर्न में। अब दो तरह के मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर हो सकती है, या तो वायर्ड होगा या तो वायरलेस होगा। मीन्स अगर कोई इथरनेट बनाना है या कोई लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम वायर्ड नेटवर्क बनाएंगे, वायर्ड इथरनेट बनाएंगे, या फिर वायरलेस इथरनेट बनाएंगे। दोनों ही केस में मैक के जो प्रोटोकॉल है, मैक की जो मेथड है वो अलग अलग रहेगी। तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं वायर्ड मैक लेयर। वायर्ड मैक लेयर इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम इट्स वायरलेस काउंटरपार्ट्स। Many algorithms for allocating a multiple access channels are known as media access control protocol is used to provide the data link layer of the Ethernet LAN system। वायर्ड LAN का मतलब होता है कि यदि आपको इथरनेट जो कि वायर से बना हुआ हो तो हमें उस वायर को ही एक्सेस करना होता है। यदि कोई मशीन इस वायर से कनेक्टेड है तो मशीन यदि डेटा को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करती है तो उससे पहले उस कोएक्सियल केबल को या कॉपर केबल जो भी उसमें कनेक्टेड है उसको पहले एक्सेस करना होता है, क्योंकि उसी पैटर्न से डेटा जाता है। मैक सब लेयर प्रोवाइड्स एड्रेसिंग एंड चैनल एक्सेस कंट्रोल mechanisms that make it possible for several terminal or network node to communicate within a multiple access network that incorporates a shared medium।
यहाँ पे इथरनेट की वर्किंग बताई है, क्योंकि इथरनेट हम एक लोकल एरिया नेटवर्क को बोलते हैं और उस लोकल एरिया नेटवर्क में कोई ना कोई टोपोलॉजी होगी। उस टोपोलॉजी से कई सारी मशीन आपस में कनेक्टेड होगी। कोई भी मशीन डेटा ट्रांसफ़र को स्टार्ट कर सकती है। ट्रांसफ़र करने से पहले उसे मीडियम को एक्सेस करना होगा। मीडियम को एक्सेस करने के बाद ही डेटा वो मीडियम पे लोड कर पाएंगे, क्योंकि अगर केबल कनेक्टेड नहीं है तो हम डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और केबल के थ्रू ही डेटा का जाना, ये कहलाता है मीडियम एक्सेस। अब कौन कौन से मैक प्रोटोकॉल होते हैं? तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल है जो वायर्ड पर है और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल है जो वायरलेस पर भी है। तो एलोहा प्रोटोकॉल मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल कहलाता है। इसमें दो टाइप होते हैं, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। सेकंड होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, CSMA। इसके भी तीन टाइप है, वन परसिस्टेंस CSMA, नॉन परसिस्टेंट CSMA एंड एन परसिस्टेंट CSMA। तो ये तीन टाइप है CSMA प्रोटोकॉल के, वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड थर्ड होता है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में चैनल के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, चैनल को ही हम एक्सेस करेंगे और फिर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। FDMA, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस TDMA एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA। तो ये तीन मेथड आती है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के अंदर। सबसे पहले मेक प्रोटोकॉल डिस्कस करें, एलोहा। Aloha refers to a simple communication scheme in which each source in a network sends data whenever there is a frame to send. Aloha एक टर्म्स है, एक हवाईयन सिटी का एक वर्ड है। जैसे हमारे इंडिया में हेलो से इनिशिएट किया जाता है कोई भी डेटा कम्युनिकेशन, वैसे ही हवाईयन कंट्री में कोई भी अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है तो वो एलोहा बोल के स्टार्ट करता है। तो हमारे इंडिया के अंदर जैसे हम हाय या हेलो करते हैं और फिर हम अपनी बातें स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, इसी तरह से हवाईयन सिटी में भी एलोहा वर्ड को इस तरह से रेफर किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एलोहा एक हवाईयन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हेलो। और एलोहा रेफर्स करता है एक सिंपल कम्युनिकेशन स्कीम्स को, जिसमें नेटवर्क के अंदर जो भी सोर्स है जो डेटा को सेंड करने में इंटरेस्टेड है, वो जस्ट अपनी फ्रेम को सेंड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में देखा था कि जब भी सेंडर मशीन के पास बफर में कुछ फ्रेम्स आती है, वो वन बाय वन फ्रेम को सेंड करना स्टार्ट कर देता है। उसमें कोई एरर आने के चांसेस नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चैनल नहीं था। इफ़ द फ्रेम सक्सेसफुली रीचेज द डेस्टिनेशन, ओके लेट्स कंटिन्यू। सो एलोहा एक ऐसा टर्म्स है जो रेफर करता है सिंपल कम्युनिकेशन स्कीम्स को, जिसमें होगा क्या कि हर एक सोर्स नोड जो भी मशीन है वो डेटा को सेंड करने स्टार्ट कर देती है जब भी उसके पास कोई फ्रेम आती है। तो जब भी उसके पास फ्रेम आएगी वो फ्रेम को सेंड कर देगी। इफ़ द फ्रेम सक्सेसफुली रीचेज द डेस्टिनेशन द नेक्स्ट फ्रेम इज सेंट। जब एक फ्रेम रिसीवर मशीन के पास सक्सेसफुली पहुंच जाती है, देन नेक्स्ट फ्रेम सेंड की जाती है। इफ़ द फ्रेम फेल्स टू बी रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन, इट इज़ सेंट अगेन। अगर कोई फ्रेम जो सेंडर मशीन से निकली थी डेस्टिनेशन मशीन पर नहीं पहुंच पाई या पहुंचने में फेल हो जाती है, तो वापस से उसको रीट्रांसमिशन करना पड़ता है। Aloha protocol is mainly contention protocol, access to the medium from many entry point, that is called contention.
एलो प्रोटोकॉल एक मेनली कंटेंशन प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे कंटेंशन प्रोटोकॉल को क्लियर किया है कि अगर हम किसी भी नेटवर्क में मीडियम को एक्सेस करें और एक्सेस करने के मल्टीपल पॉइंट हो तो उसको हम कहते हैं कंटेंशन प्रोटोकॉल। तो एलोहा उस कैटेगरी में बिलोंग करता है। In a wireless broadcast system or half duplex two-way links, Aloha work perfectly. Aloha कहाँ पे प्रॉपर वर्क करता है? तो एक वायरलेस ब्रॉडकास्ट सिस्टम में या किसी हाफ डुप्लेक्स टू वे लिंक के अंदर। बट इन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इट फील्स ट्रबल। अगर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाता है या नेटवर्क आर्किटेक्चर सडनली बदल जाता है, जैसे स्टार टोपोलॉजी से अगर कोई पैकेट या कोई फ्रेम निकलती है और डेस्टिनेशन मशीन अगर सपोज रिंग टोपोलॉजी में है, तो यहाँ पे नेटवर्क के आर्किटेक्चर में चेंज आ गया। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाता है, यहाँ पे एलोहा प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ट्रबल इन टर्म्स ऑफ कोलिजन, अगर फ्रेम एक दूसरे से कोलाइड होती है, अगर दो मशीन एक साथ मीडियम को एक्सेस करके अपना डेटा फ्रेम को लोड कर देती है मीडियम पे, तो हो सकता है फ्रेम आगे चल के किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोलाइड कर जाए। राइट, फ्रेम का आपस में टकराना कोलिजन कहलाता है। तो कोलिजन्स की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है एलोहा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मशीन का यहाँ पे कोई टाइम सेट नहीं है कि वो कब डेटा को लोड कर सकती है, वो कब किसी भी शेयर्ड मीडियम को एक्सेस कर सकती है। क्योंकि ये जस्ट स्टार्टिंग था डेटा कम्युनिकेशन में कि एक मशीन फ्रेम को कैसे एक्सेप्ट करे और कैसे सेंड करे। तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था एलोहा का। एलोहा से स्टार्ट हुआ था डेटा कम्युनिकेशन कि हम फ्रेम को सेंड कर सकते हैं किसी दूसरे मशीन पर एक शेयर्ड मीडियम को एक्सेस करते हुए। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में कोई प्रोविज़न नहीं थे, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे कि अगर मल्टीपल मशीन्स है तो हम दूसरी मशीन को रिस्ट्रिक्ट कैसे करें। अगर मशीन नंबर वन अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रही है, वो शेयर्ड मीडियम को एक्सेस कर रही है, अपना डेटा लोड कर रही है, तो दूसरी मशीन लोड ना करे, इस बात को हम उसको कैसे बताएं, उसको कैसे इंटीमेट करें। इसके लिए कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी मेथड उस समय अवेलेबल नहीं थी। और यही रीज़न था कि वहाँ पे कोलिजन सबसे ज़्यादा होते थे। अगर सिंपल एग्जांपल में भी कि अगर ट्रैफिक पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं मिलता है और अगर रेड सिग्नल पर भी हम गाड़ी चला देते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर हम प्रॉपर सिग्नल, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों को यदि हम प्रॉपर ड्यूटी पे लगा देते हैं, जिनका काम होता है कि रेड सिग्नल पे रोकना, ग्रीन सिग्नल पे जाने देना, अलाउ करना, तो फिर हो सकता है एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जस्ट डेटा ट्रांसमिशन अलाउ किया था। एक मशीन जो कि इथरनेट का पार्ट थी, वो अपना डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकती थी। उसके पास जब भी फ्रेम आएगी वो सेंड कर देगी और एक्नॉलेजमेंट आने के बाद दूसरी फ्रेम सेंड कर देगी। एलोहा का एक टाइप है यहाँ पे प्योर अलोहा प्रोटोकॉल। विथ प्योर अलोहा प्रोटोकॉल स्टेशंस आर अलाउड एक्सेस टू चैनल whenever they have data to transmit। यहाँ पर जो एलोहा का सबसे पहला टाइप था वो था प्योर अलोहा, जिसमें हमेशा मशीन के पास जब बफर में डेटा पैकेट्स होते हैं, फ्रेम्स होती है, तो वो ट्रांसफ़र को इनिशिएट कर सकता है, वो डेटा कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकता है। इसका एडवांटेज, सुपीरियर टू फिक्स्ड असाइनमेंट व्हेन देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बस स्टेशंस। अगर कई सारे स्टेशंस है, लार्ज नंबर ऑफ बर्स्ट स्टेशन का मतलब है कि बहुत सारी मशीन है जो डेटा को स्टार्ट करना चाहती है, ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करती है, तो एलोहा उसको सुपीरियर कर देता है, फिक्स असाइनमेंट कर देता है कि सारी मशीन एक साथ डेटा को सेंड करेगी, बट यहाँ पर वन बाय वन उसको चांस मिलता है। एडॉप्ट टू वेरिंग नंबर ऑफ स्टेशन, यहाँ पे हर एक स्टेशन को चांस मिलता है, एडॉप्ट किए जाते हैं और उनको उस स्टेशन का पार्ट भी बनाया जाता है। तो कई सारे स्टेशंस ऐड ऑन भी हो सकते हैं और एक बड़ा लार्ज नंबर ऑफ स्टेशंस बना सकते हैं। प्योर अलोहा के कुछ डिसएडवांटेज भी है। थ्योरेटिकली प्रूवन थ्रूपुट मैक्सिमम ऑफ 18%। इसका जब थ्रूपुट कैलकुलेट किया गया तो 18% ही निकला। रिक्वायर्स क्यूइंग बफर फॉर रिट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स। यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी
जो कि बफर के जैसे काम करता था, क्योंकि जब भी कोई डेटा फ्रेम सक्सेसफुली नहीं पहुंच पाती है उस केस में रिट्रांसमिशन करना होता है। तो रिट्रांसमिशन करने के लिए हमारे पास एक बफर होना जरूरी है, और बफर में भी कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर होना जरूरी है जिससे हम ऑर्डर मेंटेन करें कि कोई भी डेटा फ्रेम किस ऑर्डर में आई है, किस ऑर्डर में ट्रांसफ़र होगी। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे कि इसका थ्रूपुट सबसे कम था, 18% था, और इसके पास एक डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी ताकि वो रिट्रांसमिशन जिन भी पैकेट का या फ्रेम का करना पड़े तो वो उसको बफर से कर पाए। अब इस थ्रूपुट को हमें बढ़ाना था, कम से कम कोलिजन हो और मैक्सिमम थ्रूपुट निकले, इसलिए एलोहा का दूसरा टाइप बना स्लॉटेड एलोहा प्रोटोकॉल। By making a small restrictions in the transmission freedom of individual stations, the throughput of the Aloha protocol can be doubled. अब यदि हम किसी इथरनेट से कई सारे सिस्टम अगर कनेक्टेड है, अगर हम इंडिविजुअल सिस्टम को फ्रीडम दे दें कि वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, तो हम उसका जो थ्रूपुट है उसको डबल कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम हर एक इंडिविजुअल स्टेशन को जो फ्रीडम देने वाले हैं वो किसी न किसी रिस्ट्रिक्शंस के साथ देंगे। राइट, हम सभी मशीन को एक साथ अलाउ नहीं कर सकते कि वो किसी शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम को एक्सेस करके अपना डेटा लोड कर दे। तो स्लॉटेड अलोहा में स्लॉटेड का जो मीनिंग है वो ये है कि हर एक मशीन को, हर एक स्टेशन को एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही वो अपना डेटा लोड कर सकता है जो भी उसके बफर में है सेंड करने के लिए। तो शेयर्ड मीडियम को एक्सेस करना और डेटा को लोड करने का जो टाइम स्लॉट होगा वो इसके अंदर मेंशन किया गया। इससे बेनिफिट ये हुआ कि इसकी एफिशिएंसी तो बढ़ गई, साथ ही साथ इसमें कोलिजन कम होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि हर एक मशीन का अब अपना एक टाइम स्लॉट था, उसी टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग मशीन या स्टेशन अपना डेटा ट्रांसमिशन मीडियम पर लोड करते थे। तो एक छोटे से रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो कि ट्रांसमिशन में आया था, इससे इंडिविजुअल स्टेशंस को फ्रीडम भी मिली और एलोहा प्रोटोकॉल का जो थ्रूपुट था वो डबल भी हुआ। एज्यूमिंग कांस्टेंट लेंथ पैकेट्स, ट्रांसमिशन टाइम इज ब्रोकन इनटू स्लॉट। यहाँ पे जो भी पैकेट की जो लेंथ होती थी वो कांस्टेंट हुआ करती थी, और जो ट्रांसमिशन टाइम था उसको स्लॉट में ब्रोकन डाउन कर दिया। एडवांटेज अगर देखें तो इसकी एफिशिएंसी डबल हो गई, डबल द एफिशिएंसी ऑफ एलोहा। एडॉप्टेबल टू अ चेंजिंग स्टेशंस पॉपुलेशन, स्टेशन का आर्किटेक्चर अगर बदल जाता है तो भी ये ट्रांसफ़र कर सकता है। डिसएडवांटेज में इसका थ्रूपुट 18% से डबल निकल के आया 36%, बट इसके अंदर थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन लग गया, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड हुआ। सिंक्रोनाइजेशन इस बात पे कि हर एक मशीन को जो इथरनेट से कनेक्टेड थी उन स्टेशंस को हमें टाइम स्लॉट देना था, और उसी टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग वो अपना डेटा को लोड करते थे ट्रांसमिशन मीडियम पे। तो ये हम मशीन या स्टेशन वाइज करते थे, स्टेशन 1 का पहला स्लॉट है, स्टेशन 2 का पहला स्लॉट है, फिर स्टेशन 3 का थर्ड स्लॉट है। इस तरह से 1 2 3 जो हम ऑर्डर मेंटेन करते हैं उसी ऑर्डर में स्टेशंस को चांस मिलते थे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, इसलिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड हुआ। तो ये था अलोहा के दो टाइप, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा, जो कि डेटा फ्रेम को ट्रांसमिट करते हैं, एक बिना स्लॉट के करता है और एक प्रॉपर टाइम स्लॉट के बेस पे करता है। सेकेंड प्रोटोकॉल है CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब यहाँ भी इस टर्म को पहले समझना जरूरी है। कैरियर मीन्स जो मशीन या जो स्टेशन डेटा को स्टार्ट करने वाली है, डेटा को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करने वाली है। सेंस मीन्स हम ट्रांसमिशन मीडियम को पहले सेंस करेंगे। अगर हमें हाईवे क्रॉस करना है तो वो जो एक ट्रांसमिशन मीडियम है जिसको हम हाईवे कह रहे हैं, हम उस हाईवे को पहले चेक करेंगे। अगर वो बिज़ी होगा तो हम अपने आप को स्टॉप कर देंगे, वेट करेंगे, और अगर वो बिज़ी नहीं है, वो आइडियल है, तो हम आसानी से उसको क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर भी कई सारे यूज़र्स उस हाईवे को क्रॉस करना चाहते हैं,
एक्सेस करना चाहते हैं, बट एक्सेस करने से पहले उसको वो सेंस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो सेंस नहीं करेंगे तो हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो जाए। तो जिस तरह से हाईवे पर कई सारी व्हीकल चलती है और कोई भी यूज़र उस हाईवे को सेंस करके ही क्रॉस करता है, एक्सेस करता है, इसी तरह से आप एक इथरनेट को एनालिसिस करो। एज्यूम करो कि एक इथरनेट है, लोकल एरिया नेटवर्क है, कुछ मशीन आपस में इथरनेट से कनेक्टेड है। हर मशीन चाहती है इंटरनेट को यूज़ करना, ब्राउजिंग करना, डेटा कम्युनिकेशन करना, बट वहाँ पे केबल सभी के साथ कॉमन है, शेयर्ड मीडियम में है। तो उस केस में कौन सा मशीन या कौन सा स्टेशन उस शेयर्ड मीडियम को एक्सेस करेगा? तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहाँ पे कई सारी डिवाइस एक कॉमन शेयर्ड मीडियम को एक्सेस करती है और डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट करती है। बट एक्सेस करने से पहले वो उस मीडियम को सेंस करती है। अगर मीडियम फ्री रहा तो फिर वो अपना डेटा उस मीडियम पे लोड करेगी और डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगी। और अगर मीडियम फ्री नहीं रहा, अगर बिजी है तो वो अपने आप को उस कुछ समय के लिए वेट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस डिस्क्राइब द फैक्ट दैट अ ट्रांसमीटर लिसन फॉर अ कैरियर वेव बिफोर ट्राइंग टू सेंड। इसमें कैरियर एक तरह की वेव बोल सकते हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। एक्चुअली कैरियर वेव्स एक हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती है जो यूज़र के इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अहमदाबाद जाना है तो आप पैदल नहीं जा सकते, आप थक जाओगे। तो आप क्या ही करोगे, आप या कोई बस हायर करोगे या कोई टैक्सी हायर करोगे या ट्रेन करोगे। तो यदि आप उस हाई स्पीड किसी न किसी एक्सप्रेस गाड़ी से या बस से आप जाते हो तो आपको हार्डली 2 घंटे लगता है। तो इसी तरह से कोई भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन को अगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो वो बाइनरी इन्फॉर्मेशन क्या करती है, एक कैरियर वेव को हायर करती है। कैरियर वेव के ऊपर हमारा ओरिजिनल डेटा होता है बाइनरी फॉर्मेट में, और फिर वो ओरिजिनल डेटा कैरियर वेव के साथ मूव करती है। और कैरियर वेव एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है, वो यूज़र की इंफॉर्मेशन को बहुत फास्ट वे में डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंचाती है। तो यहाँ पे कैरियर वेव डेटा को सेंड करना चाहती है, बट सेंड करने से पहले वो पहले उसको लिसन करेगी, सेंस करेगी। सो कैरियर सेंस डिस्क्राइब करते हैं एक ऐसे फैक्ट को जिसमें जो ट्रांसमीटर है वो लिसन करते हैं पहले कैरियर वेव को बिफोर ट्राइंग टू सेंड, सेंड करने से पहले। दैट इज इट ट्राइज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनकोडेड सिग्नल फ्रॉम अनदर स्टेशन बिफोर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसमिट। पहले ये चेक किया जाएगा कि कोई दूसरा एनकोडेड सिग्नल तो नहीं आया है। अगर कोई दूसरा सिग्नल होगा तो उसका एम्पलीट्यूड हाई हो गया होगा, राइट। अगर दो सिग्नल एक साथ किसी ट्रांसमिशन मीडियम को एक्सेस करते हैं तो उस ट्रांसमिशन मीडियम का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यही तरीका होता है डिटेक्शन करने का। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है दैट इज इट ट्राइज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनकोडेड सिग्नल, वो इस बात को पता लगाने का ट्राई करते हैं कि वहाँ पे कोई दूसरा एनकोडेड सिग्नल अवेलेबल तो नहीं है जो किसी दूसरे स्टेशन ने अपलोड कर दिया हो। इफ़ अ कैरियर इज सेंस्ड, अगर प्रॉपरली जो कैरियर वेव्स है वो सेंस हो जाती है, स्टेशन वेट्स फॉर द ट्रांसमिशन इन प्रोग्रेस टू फिनिश बिफोर इनिशिएटिंग इट्स ओन ट्रांसमिशन। सो अपना ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने से पहले वो अपने आप को वेट कंडीशन में डाल देगी, थोड़े समय के लिए अपने लिए वेट कॉल करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंस हो चुका है, क्योंकि कैरियर वेव पर ऑलरेडी किसी दूसरे स्टेशन का डेटा लोड है, इसलिए उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हाई है। मल्टीपल एक्सेस का यहाँ पे मतलब होता है, मल्टीपल एक्सेस डिस्क्राइब द फैक्ट दैट मल्टीपल स्टेशन, जस्ट वेट। So multiple access describe the fact that multiple stations sends and receive on the medium. So यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस का मतलब है कि ये एक ऐसी टर्म्स को डिस्क्राइब करता है वेयर मोर देन वन स्टेशन कैन सेंड्स
and receive the data. So transmission by one node are generally received by all other nodes, all other stations using medium. Now types of CSMA protocol. Again, we have a different CSMA protocol that determines what a station should do when the medium is ideal, what a station should do when the medium is busy. सिस्टम को क्या करना चाहिए, स्टेशन को क्या करना चाहिए अगर मीडियम फ्री है, और स्टेशन को क्या करना चाहिए अगर मीडियम बिजी है. सो उस केस में तीन प्रोटोकॉल्स बनते हैं: नॉन परसिस्टेंट CSMA, वन परसिस्टेंट CSMA एंड पी परसिस्टेंट CSMA. सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे CSMA के टाइप्स, नॉन परसिस्टेंस कैसे काम करते हैं, वन परसिस्टेंस एंड पी परसिस्टेंट. तीनों प्रोटोकॉल हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे.